Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह हम देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजारों पर नजर डालेंगे, साथ ही प्रमुख समाचारों पर चर्चा भी करेंगे। प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ विशाल दहिया। विशाल जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। Warm welcome, Vishal. थैंक यू राजेश जी, धन्यवाद सोनू जी। और अब हेडलाइंस के साथ है राजेश लेख। Benchmark domestic equity indices end on a flat note. Sensex slips over 50 points. Nifty closes at 25,104. Major Asian markets end mixed as investors await further details on the US-China trade talks. And global crude oil prices edge up. Brent crude trades at $67.43 per barrel. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक बिना किसी खास बदलाव के बंद हुए। सेंसेक्स 50 अंक से अधिक गिरा। निफ्टी 25,104 पर हुआ बंद। प्रमुख एशियाई बाजारों में रुख मिला जुला था। निवेशकों को अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता पर अतिरिक्त ब्यौरे का था इंतजार। और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आई बढ़त। ब्रेंट क्रूड $67.43 प्रति बैरल पर था। Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. शुरुआत करते हैं भारतीय शेयर बाजारों से, जहां कारोबार सीमित दायरे में हुआ और प्रमुख सूचकांक बिना किसी खास बदलाव के बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 53 अंक गिरकर 82,392 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों पर आधारित निफ्टी केवल 1 अंक बढ़कर 25,104 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां हल्की बढ़त का रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक लगभग पूर्व स्तर पर ही बना रहा। हालांकि स्मॉल कैप सूचकांक ने बेहतर प्रदर्शन दिखाते हुए 0.3% से अधिक की तेजी दर्ज की। The benchmark domestic equity indices ended on a flat note in a range-bound trade today. The 30-share index of the Bombay Stock Exchange, Sensex, dipped 53 points to close at 82,392. The National Stock Exchange, Nifty 50, added just a point to settle at 25,104. The broader market indices of the BSE ended in a positive territory. The mid-cap index closed nearly unchanged, while the small-cap index outshined, ending with gains of over 0.3%. In the Sensex index, 16 out of 30 companies edged up. Among the top gainers, Tech Mahindra rose over 2.2%, Tata Motors gained 2%, and Infosys added 1.5%. In the top laggards, Asian Paints shed over 1.2%, Bajaj Finance lost more than 1.1%, and Tata Steel lost almost 1%. In sectoral indices of the BSE, 13 out of 21 sectors closed in positive territory. Among the top gainers, focused IT companies jumped over 1.6%, IT climbed almost 1.6%, and utilities advanced 1.5%. In the top laggards, realty dipped more than 1.1%, telecommunications slipped over 0.5%, and financial services declined over 0.4%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,232 companies advanced,
Shares of 1,805 companies declined, while shares of 135 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 105 companies hit their 52-week high, while 14 hit their 52-week low. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले मामूली मजबूती दर्ज करता हुआ 85.61 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 98.99 पर था। विशाल, क्या कहेंगे आप? आज हालांकि बिल्कुल फ्लैट रहा है पूरा बाजार एक्सेप्ट फॉर स्मॉल कैप इंडेक्स, जिसमें 0.3% की हमने बढ़त देखी है। लेकिन अगर हम पिछले 2 दिनों को देखें, फ्राइडे को और मंडे को, आरबीआई की पॉलिसी आने के बाद लगभग 1000 अंकों का बढ़त हमने दर्ज किया है सेंसेक्स में। सो आज अगर बारीकी से सेक्टर्स को देखें, रियल्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज में खासी गिरावट आई है। आपको लगता है कि यही सेक्टर्स जो बढ़े थे पिछले 2 दिनों में, उनमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है? जी बिल्कुल। देखिए, बाजार की एक ट्रेंड है और एक खासियत है सोनू जी के जब बहुत अच्छा चल रहा होता है तो उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब जो इन्वेस्टर्स हैं बाजार में वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ बढ़ते हैं, और जब बहुत सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स एक साथ मिलते हैं तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो उन पॉजिटिव इंडिकेटर्स का फ़ायदा उठाने के बाद इंतज़ार करते हैं, उन इंडिकेटर्स की तरफ उनकी नज़र चली जाती है जहां से ज़्यादा पॉजिटिविटी पिछले कुछ समय से नहीं आ रही हो, और ये एक पोर्टफोलियो को मजबूती प्रदान करना या उसको बिल्डअप करना उसकी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। तो इसीलिए आज जो हमें बाजार में देखने को मिला वो रेंज बाउंड रहा, और जिसे फ्लैट भी कह सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर उसमें जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था वो था प्रॉफिट बुकिंग का। और एक उम्मीद भरी निगाहों से जो इंडिकेटर्स होते हैं, बाकी जो इंडिकेटर्स हैं, देखिए डोमेस्टिक इंडिकेटर्स सब पॉजिटिव हैं, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा जो अभी तक आ रहा है वो सब पॉजिटिव रहा है। अब जो मेरा मानना है इन्वेस्टर्स की, बाज़ार में इन्वेस्ट करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो या ख़ास तौर से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनकी निगाह अब 2 बड़ी चीज़ों पर टिकी है। पहला तो अमेरिका और चीन के बीच जो व्यापार को लेकर और जो टैरिफ है, जिसे ट्रंप टैरिफ कहा जाता है, उसको लेकर जो बातचीत चल रही है उसके क्या नतीजे आते हैं। और दूसरा जो इसी हफ्ते में आखिरी में भारत और अमेरिका दोनों के जो महंगाई के आंकड़े आएंगे, तो उनसे भी एक नई इंडिकेशन, एक नई दिशा बाजार को मिल सकती है, इन्वेस्टर्स को मिल सकती है। ये 2 बड़ी चीज़ें हैं जिन पर अभी नज़र टिकी हुई है। बाकी इसके अलावा जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन था पिछले लगभग मैं कहूँगा 2 से 3 हफ्ते में, उसका निवारण पिछले 4 से 5 दिनों में हो चुका था, और उसका नतीजा हमें दिखाई दिया बाजार में जो उछाल रहा, आपने जैसा बताया शुक्रवार और सोमवार के दिन। आज का वो दिन था जब शायद बाजार ने थोड़ी सी सांस ली और इन्वेस्टर्स ने जो है प्रॉफिट बुकिंग की, जो कि एक नॉर्मल मार्केट मैकेनिज्म का हिस्सा माना जा सकता है। Mentioned the mixed trend actually persisted across sectors, with IT, pharma and energy emerging as gainers. As Sonu said, realty and banking remained slightly on the back foot today. So what do you think about these sectors, IT, pharma and energy, going forward? Well, Rajesh, when we look at these sectors, and specifically I would like to start with energy. Energy is a sector wherein, there is a sustained momentum for quite some time. There are dips in between as well. But then, because largely when we're talking about energy, this comprises of both the renewable and non-renewable energy as well. There's a lot of work which has been going on as far as the non-renewable energy is concerned. The company portfolios in that particular subsector are really growing by leaps and bounds. So expectations from there, that's one. Two, if we look at IT and pharma, what my personal observation is that perhaps, looking at the negotiations which are going on between India and United States as well, vis-a-vis
Trump tariffs, because the biggest hit was to be taken by the IT sector as far as those tariffs were concerned. They're hopeful that with a positive resolution, and as if I remember correctly, the External Affairs Minister has also mentioned somewhere that perhaps by the time the 90-day period gets over next month, both sides will arrive at a very positive conclusion. So there is some tempo building up, some positive sentiment building up as well. That is why we might see these small spurts or jumps in IT and pharma sector going further from here onwards as well. This might not be a standalone isolated event. विशाल जी, निफ्टी बैंक इंडेक्स कल अपने 57,000 के लेवल को क्रॉस किया था. दिन में एक रिकॉर्ड हाई था वो. क्या लगता है आपको, जो आरबीआई की पॉलिसी आई जिसमें ये डबल एक वो था, डबल शॉट था, एक तो 50 बेसिस पॉइंट्स, आधा प्रतिशत जो उन्होंने कटौती करी रेपो रेट में, और उसके साथ ही साथ जो 1% कैश रिजर्व रेशियो में कटौती करी है, आपको लगता है ये ना सिर्फ इकोनॉमी के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए, सभी जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स के लिए, किस तरह से देखते हैं आप इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट इकोनॉमी पे और स्टॉक मार्केट के सेंटिमेंट पे? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था रिजर्व बैंक का, खासतौर पे इस बार वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो फैसले हुए. और मैं इसे महत्वपूर्ण इसलिए कहूँगा कि आपने अच्छा किया, आपने इस फ्रेज का यूज़ किया, लॉन्ग टर्म इफेक्ट. क्योंकि जनरली जब हम सेंट्रल बैंक्स, चाहे वो हमारे देश का हो या फिर किसी और देश का हो, खासतौर पे हम फेड रिजर्व की बात करते हैं या फिर यूरोपियन देशों के सेंट्रल बैंक की बात करते हैं, तो उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ की जो फैसले आते हैं, ज़्यादातर उनको शॉर्ट या मिड टर्म में देखा जाता है. मैं इस फैसले को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इफेक्टिव भी मानता हूं, और इसलिए मानता हूं कि आरबीआई ने ना केवल जो आम जन हैं उनको राहत दी रेपो रेट में कमी देके, क्योंकि उससे जो आपकी इंटरेस्ट रेट है उनमें गिरावट हुई, लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर है उसको भी एक तरीके से उन्होंने जो मैं कहूँगा सुप्त अवस्था में तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा सुस्त जो है, मतलब मामला जो जिसे कहा जा सकता है, कई बैंकों का जो चल रहा था उनको बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सीआरआर में जो छूट दी है उसके चलते जो कैश की अवेलेबिलिटी है, जो लेंडिंग फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ से बैंकों को कमाई होती है, क्योंकि अगर वो पैसा कमाएगा नहीं बैंक, तो वो उसका फ़ायदा जो है बैंकों के जो ग्राहक हैं उनको नहीं मिल पाएगा, चाहे वो आप इंटरेस्ट रेट की बात करें या फिर जो सर्विसेज हैं, जो सुविधाएं हैं, उनकी बात करें. तो इसका थोड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, और बड़ी अच्छी बात है कि बाज़ार में जो इन्वेस्टर हैं वो थोड़े से दूरदर्शी दिखे. उन्होंने 2 दिन से इसको भांपा और उसका नतीजा देखने को मिला. अब ये जो निफ्टी बैंक की जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो जो सेगमेंट है उसकी सस्टेन परफॉर्मेंस अब इस बात पर निर्भर करेगी कि जो बैंकिंग सेक्टर के बड़े प्लेयर हैं उनके नतीजे क्या आते हैं, तिमाही के नतीजे क्या आते हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है, किस तरह की परफॉर्मेंस वो अपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस में लेकर आते हैं. क्योंकि बाज़ार जो है, मैं कहूँगा कि मार्केट्स जो है बहुत ही जैसे कहा जाए अनरिलेंटिंग होती हैं. आपको आप पे उम्मीदें अगर टिकी हैं एक सेक्टर के लिहाज से, तो आपको पूरा आप पे भरोसा जताया जाएगा, लेकिन अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो वो भरोसा बहुत जल्दी बाजार में खत्म भी होता है. The India volatility index fell significantly today. What does this suggest about market expectations for near-term volatility? I'll take you back to Rajesh ji around 4-5 months back, somewhere around February, when we were all taken by surprise. The entire world was taken by surprise by Trump tariffs and all that. And if we do a bit of a comparative analysis in terms of the volatility index, the Indian as well as overall, other markets as well, it was huge because there was a lot of uncertainty. Now that uncertainty has dwindled down, has settled down to a great extent. Now just the larger benchmarkers are, need to be settled. For example, the ongoing dialogue between USA and China,
the ongoing dialogue between US and India, specifically from an India volatility index and from Indian perspective, if you look at it that way. So looks like, there seems to be some certainty coming in, and that is resulting into lowering down of that volatility index. That is why we don't see the market, moving in an S curve throughout a session or throughout a day. We see sustained momentum in the market for at least 2-3 days if it is growing, and then if it is cautious, if there is a cautious approach, there might be 1 or 2 days when the market ends flat, and if there are larger concerns, then the market will start going down, but in a very structured fashion. It is not going it is not moving in a pendulum fashion, and that is something which is a very, very positive indication, because for large institutional investors as well as for the retail investors, it is really important that the volatility index stays low and that pendulum effect does not come into operation. So the investors are closely monitoring US-China trade talks, and we talked about it a while back, and the mixed global cues. Now, the markets are all about sentiments. Indian micro and macro fundamentals are pretty good, and yet when it comes to what is happening outside, we get perturbed, we get influenced by it. How much is the India, or rather US-China trade talks, going to influence us? Well, there would be a bit of an influence in terms of tailwinds, because ultimately whatever US and China arrive at in terms of their negotiations on the trade talks might have some bearing from the US perspective. And, Indian negotiators will get a fair idea as to, what is it that the United States is now looking forward to? Because Indian dialogue on the trade part started much before the Trump tariffs were announced by President Trump. So clearly we are in a positive aspect there when we're talking about who's riding in the saddle. But when we're talking of the mixed cues and the global impact as well, domestic factors have always been positive. The macroeconomic indicators are clearly pointing out to a very solid journey from here onwards, along with a solid foundation. So those are nothing to worry about. But we can't write off the global cues, because it's no longer the economies are bound by geographical boundaries, and the investors come from every nook and corner of the world. They have their own interests. They find they try and find strong footing for themselves in every market. That is why there will be some impact, but not much of a negative one, because that will be absorbed by the domestic strong fundamentals, and we'll have to wait and see as to how the India and United States settle down their trade differences. और आप बात कर रहे हैं अमेरिका चीन व्यापार वार्ता की, तो बता दें कि लंदन में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध के समाधान के लिए हो रही बातचीत के नए दौर का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत के प्रति रचनात्मक रवैया अपनाते हुए कहा है कि ये सुचारू रूप से चल रही है। बातचीत का नया दौर पिछले सप्ताह डोनाल्ड ट्रंप और चीनी नेता शी जिनपिंग के बीच फोन कॉल के बाद संभव हुआ है। सो क्या कहेंगे आप, ये जो वार्ता हो रही है, ये इसमें जो मेन क्या मुद्दे हैं, अगर आप ब्रीफली बताएं हमें, जिन पर पूरी वार्ता टिकी है? देखिए, जब दोनों ही तरफ से, अमेरिका और चीन की तरफ से लगातार एक के बाद एक टैरिफ के रेट बढ़ाए गए थे, तो उसके बाद दोनों देशों ने तय किया था कि इसे 90 दिन के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए और हम कोई मिलकर रास्ता निकालें, क्योंकि इसका नुकसान जो है अमेरिका और चीन दोनों को हो रहा था। अब सबसे बड़ा जो इसमें बातचीत में जो मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि क्या जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर थी टैरिफ्स की, क्या उस पर वापस आया जा सकता है? अगर उस पर वापस नहीं आया जा सकता, तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जिन पे चीन इस बात के लिए राजी होगा कि वो एक्सपोर्ट में और ज़्यादा टैक्स दे सकता है, और अमेरिका वो कौन से सेक्टर हैं जिसमें वो अपने हितों को सुरक्षित रखना चाहेगा और इस बात के लिए तैयार होगा कि चलिए इन सेक्टर्स को हम छोड़ सकते हैं, इन पर हम ज़्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन बाकी सेक्टर्स पर लगाना पड़ेगा। जी। So the key issues seem to be the rare earth exports,
which are crucial for automotive and tech industries. This rare earth export issue is a late entrant into this entire trade tariff deal and the negotiations as well. But incidentally, this has become the centerpiece. The reason why it has become the centerpiece is because China controls most of the rare earth elements, and for the big tech companies in the United States to prosper, they would want an uninterrupted supply of the rare earths. Of course, China has the upper hand here, and it would want some sort of bargain there vis-a-vis the manufacturing sector, because if the manufacturing sector is taxed as per the original Trump tariff policy, it is going to be a huge negative impact on the Chinese manufacturing industry. So there seems to be a lot of win-win and lose-lose situation for both of them. Now it is for both sides to come to a mutually beneficial agreement, which also doesn't end up having a negative impact via tailwinds on other economies. आइए अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। प्रमुख एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा। निवेशक अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता से जुड़े अतिरिक्त ब्यौरे के इंतजार में थे। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.4% से अधिक की गिरावट में रहा। हांगकांग के हैंगसेंग और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। हालांकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगातार 5वें सत्र तेजी में रहते हुए 0.5% से अधिक बढ़ गया और जापान के निक्केई सूचकांक में 0.32% की वृद्धि दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र पर नजर डालें तो दिन के कारोबार में यहां के प्रमुख बाजारों में भी रुख मिला जुला था। ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुट्सी 0.5% बढ़ गया था, लेकिन जर्मनी के डैक्स में 0.3% से अधिक की गिरावट थी और फ्रांस के कैक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मई में चीन में 0.1% कीमतें गिरी हैं और जापान में भी डिफ्लेशन की स्थिति है। सो हर एक जो कंट्री है उसका अलग अलग एक चैलेंज है। वहां दोनों कंट्रीज में अभी डिफ्लेशन एक प्रॉब्लम बनी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए हर इकोनॉमी का अपना एक चैलेंज है, और अगर हम प्रमुख एशियाई और यूरोपीय जो बाजार हैं और उनकी जो अर्थव्यवस्था है उनकी तरफ नजर डालते हैं तो उनके जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं उनको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ग्लोबल क्यूज जरूर इंपैक्ट करते हैं, लेकिन डोमेस्टिकली जापान में क्या हो रहा है, चीन में किस तरह से इकोनॉमी चल रही है, जर्मनी में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, उसका सीधा असर वहां देखने को मिलता है। जैसे कि एक मोटा एग्जांपल भारत है। अभी थोड़ी देर पहले हम बातचीत कर रहे थे, भारत की जो डोमेस्टिक जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए जो वैश्विक जो पटल पर जो बातें होती हैं, जो ग्लोबल क्यूज होते हैं, उनका असर जरूर पड़ता है, लेकिन उतना नहीं पड़ता। Meanwhile, US stocks ended in a positive territory on Monday, lifted by select heavyweights. Meanwhile, investors also focused on US-China negotiations aimed at mending a trade dispute between the world's two largest economies. The Nasdaq Composite closed over 0.3% up. S&P 500 ended nearly flat, and the Dow Jones Industrial Average remained unchanged. Moving on, the monthly inflow into mutual funds through the Systematic Investment Plan (SIP) touched an all-time high of 26,688 crore rupees in May, according to data from the Association for Mutual Funds in India released today. The number of contributing SIP accounts increased to 8.56 crore in May from 8.38 crore in the previous month. Meanwhile, the total net assets under management of the mutual fund industry rose 72 lakh crore rupees as compared to around 70 lakh crore rupees in April. However, net inflows into equity mutual funds fell around 21.6% to 19,013 crore rupees in May from the previous month. The mutual fund industry saw net inflows of 29,108 crore rupees in May. लेते अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI जैसी प्रमुख पहलों से देश का तकनीकी वस्त्र क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय परिवर्तन पर प्रकाश डाला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता हासिल करने पर ध्यान
केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि ये देखना उत्साहजनक है कि कैसे भारत के लोग राष्ट्र को मजबूत करने के साझा संकल्प के साथ एकजुट हुए हैं। सो टेक्निकल, टेक्सटाइल्स, डिफेंस, जो नए नए हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हैं, उसमें भारत की प्रगति सराहनीय है। जी बिल्कुल, और इसका सीधा असर जो हमें अर्थव्यवस्था की जो सेहत है और उसकी जो ग्रोथ रेट है उस पर देखने को मिलता है कि कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक ग्रोथ के कंट्रीब्यूशन में अब केवल कुछ ही सेक्टरों पर निर्भरता नहीं है। अब जो वो उभरते हुए सेक्टर हैं, चाहे हम डिफेंस की बात करें या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें या आपने टेक्सटाइल की बात की, इन सब का भी कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today co-chaired a productive business roundtable on the machinery, electrical and metal industry with Swiss Federal Councillor Guy Parmelin in Switzerland. In a social media post, Mr. Goyal said that they discussed boosting innovation, facilitating partnerships and joint workforce training. He added that they also focused on unlocking new investment opportunities post-operationalization of the India's Trade and Economic Partnership Agreement and the European Free Trade Association. The minister also witnessed the signing of an MOU between SHM and SwissMem to strengthen industrial collaboration, foster innovation, growth and skill development. विशाल जी, अभी हम हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की बात कर रहे थे, तो सरकार ने अभी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है, जो हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग, खासकर सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए हैं, उनके लिए बहुत पॉलिसी रिलैक्सेशंस दिए हैं। जो उनके लिए लैंड है वो 50 हेक्टेयर्स से कम करके उसकी लिमिट 10 हेक्टेयर्स की है। ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है जो पॉलिसी एक पुश मिलता है? देखिए, मैं इसको सोनू जी कंटिन्यूटी इन पॉलिसी के तौर पे देखता हूं, क्योंकि जैसा आपने बात की, जिन मेजर्स की आपने बात की, इसकी शुरुआत वहां से हुई थी जब भारत की सरकार ने ये तय किया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, ख़ासतौर पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, उनको बढ़ावा देना ज़रूरी है। और उसका नतीजा हमें देखने को मिला कि अब हम नेट एक्सपोर्टर हैं मोबाइल के मामले में। इसी तरह और भी कई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं। सेमीकंडक्टर्स के ऊपर एक खासा जोर सरकार की तरफ से है। कई प्रोजेक्ट्स को अभी हाल फिलहाल में मंजूरी दी गई है। तो ये इसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। ये केवल अलग अलग इंडिविजुअल डिसीजंस नहीं है, ये एक पूरी लंबी बड़ी पजल का एक हिस्सा है, जिसमें अगर सब पुर्जे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो वो उसका असर जो है भारत की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। Vishal, we will also like to draw your attention to what Dr. Jaishankar has said to a French daily about India being very hopeful of reaching a bilateral trade agreement with the United States before the tariff suspension ends on the 9th of next month. What's your take on that? Well, Rajesh ji, I mentioned this earlier in one of my responses, Mr. Jaishankar's comment there, and this is really significant because, India, as I was saying, was in dialogue with the United States on trade tariffs even before Trump tariffs were announced. So we're pretty much in the saddle out there in terms of, explaining to our partner, that is the United States, as to what we want, trying to understand what they want, and then, negotiate and navigate these, rough waters in the past 3-4 months. Coming out with something positive. Indeed. Favoring India. Yes. Okay. Crude oil prices rose today. Brent crude was trading over 0.5% up at $67.43 per barrel. WTI crude was also trading over 0.5% up at $65.67 per barrel when reports last came in. उधर सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.08% बढ़कर 97,360 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी 0.31% गिरकर 1,07,180 रुपए प्रति किलो पर थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अगस्त में आपूर्ति वाले सोने का वायदा मूल्य 0.08% बढ़कर 97,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं जुलाई
में आपूर्ति वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.27% गिरकर 1,06,300 रुपये प्रति किलो पर था। समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। विशाल जी, आप आए और आपने विभिन्न विषयों पर हमें बहुमूल्य जानकारी दी, हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you, Vishal, for being with us. Thank you. And before we close, the headlines once again. Benchmark domestic equity indices end on a flat note. Sensex slips over 50 points, Nifty closes at 25,104. Major Asian markets end mixed as investors await further details on the US-China trade talks. And global crude oil prices edge up. Brent crude trades at $67.43 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.